Okay, 10th standard. Welcome back. Let us start with management and conservation of water resource. In a previous lecture, we studied till water crisis, right? Now we'll continue with the chapter 11 of SS, topic management and conservation of water resources, right? और अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वाटर क्राइसिस कितनी ज़्यादा होती जा रही है और पानी हमारे लिए कितना यूज़फुल है, ठीक है. सो नाउ वी हैव ऑलरेडी known the fact कि water is our life. So we should definitely manage it in such a way that we do not run scarcity of water should not be there, right? So we should conserve the water. We all know that the available water is in limited quantity. Its distribution is also unequal. Along with, there is a problem of water pollution. ये अभी हमने पढ़ा previous paragraphs में कि पानी की जो है वो limited quantity में है and it is unequally distributed और water pollution की problem बहुत ज़्यादा है, right? That is why it is necessary to use water economically and to conserve the available water. Now, for that reason, it is very important that we should use water properly. राइट बहुत इकोनॉमिकली ध्यान से हमें पानी यूज करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एंड वी शुड ऑल्सो कंजर्व द अवेलेबल वाटर. Water is such a resource which is directly associated with the entire living organisms. The remedies to conserve water are to be done at different stages. अब कैसे जो है हम water conserve कर सकते हैं? The maintenance of water resource is known as water conservation. राइट जो रेमेडीज जो वाटर को हम कंजर्व करते हैं, वाटर को मेंटेन करते हैं, वाटर रिसोर्सेज को, मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्स इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. सम जनरल रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर एज फॉलोज. Some constructions of reservoirs for water storage connecting two river basins, bringing the groundwater at higher level. अब यहाँ पर जो है अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पानी को स्टोर करेंगे, उसके लिए जो है हमें कुछ रिजर्वर्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. अब हम टू रिवर्स बेसिन को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जो वेल्स और ट्यूब वेल्स है, मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर जो है, राइट, ग्राउंड वाटर जो है उसका जो है लेवल हम हाई कर सकते हैं, ठीक है. तो नाउ लेट अस रीड watershed development. Now what is watershed development? Watershed development एक बहुत natural unit है. हम ये भी बोल सकते हैं कि it is like a river basin, right? अब वो किस तरह यूज होता है? Watershed is a natural unit. It is used for synthesized development in smaller natural units according to the convenience. A river basin is such an area wherein the water of a river along with the water of its branches form a watershed. जब एक या दो rivers को मिलाकर, right, when one or two river basins are joined together, ठीक है ना, one or two rivers are joined together and मतलब एक river और उसकी branches वगैरह का पानी जो है, right, वो हम join करेंगे तो we form a watershed. A watershed region is ultimately a water basin only because वो river और उसकी branches का जो है join करते हैं अपन. Water during the rainy season flows forward and finally meets any river. वो अभी हमने पढ़ा था कि river जो rain water जो है जो natural resource है, I mean water जो natural resource है वो हमें मिलता है रेन वाटर से, और ये रेन वाटर जो है वो गैदर हो जाता है रिवर्स में, और रिवर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं. द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्लोज फॉरवर्ड एंड फाइनली मीट्स एनी रिवर, राइट. अब ये बारिश का पानी जो फ्लो होता रहता है वैलीज और स्ट्रीम से, और वो आकर किस में मर्ज हो जाता है, रिवर से मर्ज हो जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ अ वाटरशेड इज एन ओवरऑल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट. तो दैट मीन्स कि ये जो रिवर्स जब इसमें पानी जो है
भर जाता है और वो मर्ज हो जाती हैं अपनी ब्रांचेस, उस रिवर और रिवर की ब्रांचेस मर्ज हो जाती हैं, तो वाटरशेड फॉर्म हो जाता है विच इज यूजफुल. इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स लाइक सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, water storage, tree plantation, forestation, horticulture, development of pasture lands, renewal of collective resources. राइट अब ये जो पानी जो होता है ये इन सारी चीज़ों में काम आ जाता है. सॉइल और ह्यूमिडिटी के कंजर्वेशन में काम आ जाता है, वाटर स्टोरेज हम कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन में काम आ जाता है, फॉरेस्टेशन में काम आ जाता है, हॉर्टिकल्चर में काम आ जाता है, पास्चर लैंड्स को बढ़ाने में काम आ जाता है. राइट और ये जो कलेक्टिव रिसोर्सेज जो है उसको भी मतलब द वाटर इज यूजफुल. And all these programs, the land capability and the requirement of people have to be considered. अब ये जो हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसमें पहले तो हमें लैंड की कैपेबिलिटी कितनी है और उधर लोग कितने हैं उसको हमको कंसिडर करना पड़ता है. अब वहाँ के लैंड की किसी भी एरिया की लैंड की कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब वो कितना फर्टाइल है, राइट और उसका यूज होने वाला है लैंड का कि नहीं, और वहाँ पर कितने लोग रहते हैं वो हमें कौन बता सकता है, वहाँ की लोकल एरिया के लोग हैं वो ही बता सकते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर्स, राइट. सो इट नीड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल. Many schemes are planned by the state and the central government. अब एक और जो है मेथड कंजर्व करने का है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आजकल बहुत चल रहा है. Special methods to collect the rainwater and to conserve it includes construction of wells, small dams, खेत तलावड़ी मतलब वो जो फार्म्स में जो छोटे छोटे से पॉन्ड्स बना देते हैं, है ना. वाटर इज कंजर्व थ्रू दीज मीडियम. जब बारिश पड़ती है, अब ये बारिश का पानी जो है वो कलेक्ट करते हैं, वेल्स में कलेक्ट करते हैं, स्मॉल डैम्स में कलेक्ट करते हैं, फार्म्स के जो छोटे छोटे पॉन्ड्स है जिसको अपन खेत तलावड़ी बोलते हैं उसमें कलेक्ट किया जाता है, राइट. मतलब इवन आजकल तो बिल्डिंग में भी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना. वाटर इज कंजर्व थ्रू दीज मीडियम्स. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम बारिश का पानी जो है वो हम सेव कर सकते हैं. इट ऑल्सो रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल. दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर. अब ये जो हमने बारिश का पानी जो सेव किया है, अब ऑब्वियस है कि बारिश का पानी सेव करेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा, राइट. तो वो दैट बिकॉज ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है. दूसरा, ये रेन वाटर अगर हम सेव करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, राइट, तो हमारे लिए डोमेस्टिक यूज में काम आएगा, एग्रीकल्चर में काम आएगा. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सबसे पहले चीज तो है टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं, टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल. दूसरा, रिड्यूसेस द वाटर पोल्यूशन, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाटर पोल्यूट हो गया. अब रेन वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर है, राइट, सो इट रिड्यूसेस द वाटर पोल्यूशन. Third, it improves the quality of groundwater. Then to save the land roots from water logging. अब देखा जाए जैसे अभी बारिश का टाइम चल रहा है, कितना सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है रोड्स पर वगैरह सब पर, है ना, और वो स्टैग्नेंट पानी, खड़ा हुआ पानी हो जाता है. इनफैक्ट जो पानी जो खड़ा हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर है, उससे और भी मक्खियाँ मच्छर हो रहे हैं, तो बीमारियां फैल रही हैं. और इतना सारा पानी जो है वो वाटर लॉगिंग इतना सारा हो जाता है, इतना सारा पानी भर जाता है, उसके कारण लोगों को तकलीफें हो जाती हैं. लेकिन यही चीज, यही रेन वाटर अगर हम हार्वेस्टिंग करें एंड ये रेन वाटर को अगर हम स्टोर करें, राइट, तो दैट कैन बी यूजफुल, राइट, टू सेव द. मतलब आप लोगों ने, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट बिल्डिंग्स में ऐसे ऊपर लोग जो है ना टैंक्स वगैरह बनवा देते हैं, उसमें रेन वाटर जो है वो स्टोर करते हैं, फिर देन दे कनेक्टेड थ्रू पाइप्स और नीचे वाली टैंक से कनेक्ट करके एंड देन जो है बिल्डिंग में वो लोग यूज करते हैं. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी गुड. रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ
water. Fulfill the requirement of domestic water requirements during summer and during long dry spells. अब अगर रेन वाटर हमने स्टोर कर दिया है थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो पानी हम डोमेस्टिक जो है के लिए काम आ सकता है समर टाइम में, जब जो है बहुत स्केर्सिटी हो जाती है पानी की, राइट, तब वी कैन यूज दैट. फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, राइट. ये जो अभी हमने पढ़ा था कि डिमांड ऑफ वाटर इज मोर देन द सप्लाई, लेकिन अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो आई थिंक वी विल बी एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ वाटर. Make arrangements to store rainwater in underground tanks in multi-story residence in large cities, and arrangements should be made so that the water percolates in the ground. अब यहाँ पर अगर हम बिल्डिंग में अगर अंडरग्राउंड टैंक्स वगैरह बनवाएं, ठीक है, सो दैट यू नो कि हम रेन वाटर स्टोर कर सकें, वी हैव टू मेक दिस अरेंजमेंट इन सच अ वे कि पानी जो है वो नीचे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ा सके, बिकॉज वो पानी जो है पर्कुलेट हो जाए ग्राउंड पे और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़े, राइट, सो दैट वी कैन यूज दैट वाटर. थिंग्स टू नो. Water of a village, water at the border of the village at the border. Padej village solves the water problem by water storage. अब देखते हैं कि इस village ने कैसे water का problem solve किया. The so-called backward villagers of Bidaj in Aravali district understood the value of water and evolved the understanding of water harvesting techniques. They converted the entire region into greenery by conserving about 2.25 crore liters, that is 2 lakhs cubic meters of rainwater. They created an association of the villagers and opted to solve the primary problem of the water. अब ये जो विलेजर्स जो थे उनको ये पता चला कि भाई पानी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है उनके विलेज में, एंड दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ वाटर. तो उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज की और उसमें उन्होंने क्या किया, द एंटायर रीजन जो है दे कंजर्व दे इनटू ग्रीनरी बाय कंजर्विंग कितना 2 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेन वाटर. कैसे किया देखते हैं. दे क्रिएटेड एन एसोसिएशन ऑफ विलेजर्स एंड दे ऑप्टेड टू सॉल्व द basic primary problem of water. They also got cooperation of social institutions of the village. With the cooperation of the institution of the people of Bidaj village were made aware that they all agreed not to allow water of the village and to flow out of the village. सबसे पहले चीज उन्होंने क्या किया, सब लोग विलेजर्स ने मिलकर और इवन जो कॉरपोरेशन वाले थे, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो थे, उनसे भी मिलकर कि पहली चीज की गांव का पानी बाहर, गांव से बाहर नहीं फ्लो होना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया उसके लिए, द विलेज पॉन्ड स्प्रेड इन ओनली 7 बीघास was deepened by 20 to 22 feet. तो उन्होंने जो विलेज पॉन्ड जो था उसको और डीपन कर दिया. With the financial assistance from the institution, 10 check dams उन्होंने बनवाए, 11 farm ponds drip in 25 hectares, pipelines in 10 hectares, deep ploughs, small dams were constructed. About 2 lakh cubic meters of rainwater was stopped and stored. तो वो पानी जो वेस्ट हो जाता था, बहता रहता था, उसको उन लोगों ने क्या किया, ये वाटर रिजर्वर्स बनवा कर उसको स्टोर कर दिया. द स्टोनी ड्राई लैंड वॉज मेड ग्रीनर. मतलब ये विलेज जो एक ड्राई एरिया था, एरिड रीजन था, राइट, उसको ग्रीनरी में बदल दिया. This pointed a way to others. About 154 vega of land in Bidaj area got new facility of water supply. उसके साथ milk production also increased by 12.5% in 1 year. Water storage increased by 20 to 30%, due to which the farm production also increased. Today, Zaid crops are ruffling in 136 vega of land in Bidaj for water in Meghraj. Meghraj is rain, right? अब इन लोगों ने जिस तरह अपने गांव को सेव किया बाय वाटर स्टोरेज उन्होंने करके और टेक्निक्स जो ये वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक से, आज उनका जो विलेज जो है उधर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है और पानी जो है वो बहुत अच्छा है, राइट. एंड विद दिस उन लोगों ने अपना लैंड भी जो है फर्टाइल कर दिया है.